Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Long Man, New Images, a comprehensive course in English for class 7th. Chapter 1 today we will be doing, and the name of the chapter is Learning the Game. The theme of this chapter is Sports. Before starting, let us look at the word for today, that is team. As a noun, it refers to two or more people working together on a single task. It is also used as a verb, meaning to join forces. When team is used as a noun, it means more than one people, more than two, three, four, any number of people when they are working together. And in the cross connect, we have team sports, are sports where individuals assemble in opposing teams that compete to win. Team members work together towards a shared objective. Team sports are any sports which are played by a group of people and they are having one motive, one united motive, that is to win together. Let us read an extract from Sachin Tendulkar's autobiography, Playing It My Way. Now, autobiography is a book written by the person himself. He describes his life in his book. Playing It My Way is written by Sachin Tendulkar. From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. अब जब सचिन तेंदुलकर काफ़ी छोटे थे तब से ये टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलोनी में. I loved watching cricket on television, and in our games, I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players, Sunil Gavaskar and the West Indian legend Viv Richards. अब इनको टीवी पर भी क्रिकेट देखना काफ़ी अच्छा लगता था और जो इनके ये फेवरेट प्लेयर्स होते थे सुनील गावस्कर जी और वेस्ट इंडिया के विव रिचर्ड्स, ये उनको एम्यूलेट करते थे, यानी कि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते थे उनके तरीकों को ये कॉपी किया करते थे. It wasn't just the batsmen that I studied. I also loved bowling and tried my hand at different kinds of deliveries, medium pace, off spin and leg spin. अब इनको सिर्फ बैटिंग करना ही नहीं अच्छा लगता था, इनको बॉलिंग करना भी अच्छा लगता था और ये अलग अलग तरीके से जो डिलीवरी करते हैं उनके प्रैक्टिस भी किया करते थे, चाहे वो मीडियम पेस हो, ऑफ स्पिन हो या फिर लेग स्पिन हो. As soon as I had finished with my batting, I would pick up a tennis ball and start bowling to whichever batsmen were around at the time. जैसे ही इनकी बैटिंग ख़त्म हो जाती थी, जो भी बैट्समैन आसपास होते थे ये उनको बॉलिंग करना स्टार्ट कर देते थे. The transition from playing with a tennis ball to a cricket ball happened under the watchful eyes of Ramakant Achrekar. अब ये जो ट्रांजिशन है, ये जो चेंज हुआ है, टेनिस बॉल से अभी तक ये खेलते थे और अब इनको क्रिकेट बॉल से खेलना है, ये रामाकांत आचरेकर जी के सामने हुआ है. Achrekar sir, as I refer to him, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when I went to him for the first time. रामाकांत आचरेकर जी ने जब पहली बार क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था तो वो 11 इयर्स के थे और ये बात 1943 की है. आज जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने आए हैं इनके पास फर्स्ट टाइम, तो इनकी भी सेम एज है. When I was growing up, he was undoubtedly one of the most accomplished coaches in Mumbai. जब सचिन तेंदुलकर बड़े हो रहे थे तो ये मुंबई के सक्सेसफुल कोचेस में से एक माने जाते हैं. My brother Ajit took me along to Achrekar sir's nets in Shivaji Park to try my luck. अब आचरेकर जी समर कैंप करते थे शिवाजी पार्क में, तो इनके जो भाई हैं सचिन तेंदुलकर जी के जो भाई हैं अजीत, वो सचिन तेंदुलकर को भी लेके गए वहाँ पे. Anyone could come for a trial at his camps, but then it was up to sir to decide whom to accept. कोई भी प्लेयर इनके कैंप में ट्रायल देने आ सकता था, लेकिन लास्ट डिसीजन सर का ही होता था किसको उन्हें एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं करना है. To start with, I trialed at the sub-junior nets.
सबसे फर्स्ट जो इन्होंने ट्राई करा है वो सब जूनियर नेट्स में किया था. I had never batted in nets before and felt somewhat overawed with so many people around. Overawed means very fearful. उनको बहुत डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतने सारे लोगों के सामने कभी भी बैटिंग नहीं की थी. I wasn't too comfortable when asked to bat. और ये कंफर्टेबल भी नहीं होते थे जब इतने लोगों के बीच में इनको कोई बैटिंग करने को बोल देता था. With sir watching me closely, I failed to make an impact. अब सर इतने पास से इनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. After I had finished batting, Sir called Ajit aside to say that I was perhaps too young and suggested that he should bring me back when I was a little older. जब इनकी बैटिंग हो गई थी तो आचरेकर जी इनके ब्रदर अजीत को साइड में लेकर गए और उनको बोला कि अभी ये छोटा है, नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल बाद लेकर आना जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए. I wasn't party to this conversation and had no idea what was discussed at the time. अब सचिन तेंदुलकर वॉज नॉट अ पार्टी टू, यानी कि वो इस कॉन्वर्जेशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे उस टाइम पर. हैविंग सीन मी प्ले इन द कॉलोनी, अजीत न्यू I could perform far better than I had. He explained that I was nervous and suggested that Sir should pretend to go away and then watch from a distance. अब इनके भाई ने ये तो देख रखा था कि कॉलोनी में सचिन कैसे खेलते हैं, उनको पता था ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्होंने सर को एक्सप्लेन करा कि अभी ये नर्वस है इसलिए ये इतना अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, आप थोड़ा साइड में जाओ और ऐसा प्रिटेंड करो कि आप इसको नहीं देख रहे हो, फिर ये बहुत अच्छे से खेलेगा. Sir agreed. Before long, I was asked to bat again, and without Sir's trained eyes scrutinizing me, or so I thought, I felt more at ease and soon started to hit the ball well. अब सर ने एग्री कर लिया कि ठीक है मैं थोड़े डिस्टेंस से इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ. उसी के बाद मेरे को फिर से बुला लिया गया, मुझे यानी कि सचिन तेंदुलकर को फिर से बुला लिया बैटिंग करने के लिए. अब वहाँ पर सर इसको नहीं देख रहे थे, इसको सचिन तेंदुलकर को ऐसा लगा कि सर इन्हें नहीं देख रहे हैं, तो ये थोड़े से कंफर्टेबल हो गए और फिर ये अच्छे से खेलने लगे. दिस टाइम सर अग्रीड टू लेट मी जॉइन द कैंप. I was delighted, and I must say it was an opportunity that transformed my life. सचिन तेंदुलकर जी की बैटिंग देखकर आचरेकर जी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने उनको अपना कैंप ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दिया. ये एक बहुत बड़ा टर्निंग था इनकी लाइफ में. The camp involved a session every morning and evening at शिवाजी पार्क. अब कैंप का ये था कि सुबह भी एक बार सेशन होता था और इवनिंग में भी होता था शिवाजी पार्क में. I would practice between 7:30 a.m. and 10:30 a.m. before making my way home for lunch. Then I would come back in the afternoon and train till late evening. सुबह 7:30 to 10:30 ये अपना प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद ये लंच करने जाते थे, शाम को आते थे और फिर लेट इवनिंग तक भी ये अपनी प्रैक्टिस करते थे. The schedule was rigorous and I would be exhausted by the end of the day. Rigorous means it was very very strict और लास्ट में रात होते होते तो ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते थे, बिल्कुल थक जाते थे. Traveling to Shivaji Park took 40 minutes from Bandra and I had to catch an early morning bus to make it on time. अब शिवाजी पार्क तक जाने के लिए इनको बैंड्रा से बस लेनी पड़ती थी जो कि 40 मिनट्स का रास्ता था, तो इनको बहुत जल्दी सुबह उठना होता था ताकि ये टाइम से बस पकड़ लें. For the first few days, Ajit accompanied me, but once I was familiar with the journey, I traveled to the camp on my own. स्टार्टिंग के कुछ दिन अजीत इनके साथ गए ताकि ये रास्ता समझ लें, ट्रैवल कैसे करना है वो देख लें. कुछ दिनों में जब ये कंफर्टेबल हो गए तो ये अकेले जाने लग गए थे. During the bus journeys, we would talk about the nuances of batting. Nuances means the difference in the techniques and strategies of people. जब बैटिंग करते हैं तो सबका अलग अलग तरीका होता था, तो ये उन चीज़ों के बारे में बात किया करते थे. I always enjoyed these conversations a lot. इनको यानी कि सचिन तेंदुलकर को इस तरीके की कॉन्वर्जेशंस काफ़ी अच्छी लगती थी. The one thing that I have kept with me
All my career is a note that Ajit gave me containing some thoughts about batting. It served as a very personal coaching manual. अजीत ने इन्हें बैटिंग करने के कुछ ऐसे थॉट्स बताए हैं जिनको इन्होंने अपनी लाइफ में आज तक रख रखा है, और वो इनके लिए एक कोचिंग मैनुअल का काम करते थे, पर्सनल मैनुअल। मैनुअल एक ऐसी बुक होती है जिसमें सब लिखा होता है, आपको कौन सा काम कैसे करना है। तो ट्रेनिंग का भी ये इनका एक पर्सनल मैनुअल हो गया। As a child, I had only one set of cricket clothes, and the routine was to wash them as soon as I returned from the morning session. अब जब ये छोटे थे तो इनके पास एक ही क्रिकेट क्लोथ का सेट होता था, तो ये सुबह आते थे मॉर्निंग सेशन के बाद और फिर उसको वॉश कर लिया करते थे। द क्लोथ्स would dry out during lunch and I would wear them again in the afternoon. सुबह अगर वॉश करेंगे तो दिन तक वो सूख जाते थे और आफ्टरनून वाले सेशन में फिर से ये वही पहन लिया करते थे। द पैटर्न वॉज रिपीटेड इन द इवनिंग सो दैट आई कुड यूज़ द सेम सेट ऑफ क्लोथ्स द फॉलोइंग मॉर्निंग। वापस से ये शाम का सेशन करने के बाद उसको फिर से वॉश कर देते थे ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से वही यूज़ कर सके। द सिस्टम वर्कड वेल अपार्ट फ्रॉम माई पॉकेट्स। फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कैंप आई प्लेड विद वेट पॉकेट्स। अब पूरे कपड़े सूख जाते थे लेकिन पॉकेट वाला जो पोर्शन था वो गीला रह जाता था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कैंप का पूरा ड्यूरेशन था, जितना भी टाइम था, उसमें हमेशा इनकी पॉकेट्स गीली ही रहा करती थी। By the middle of the summer camp, Sir informed Ajit that I had the potential to be a good cricketer if I practiced all year round. अब समर कैंप के मिडल में ही आचरेकर जी ने अजीत को इन्फॉर्म करा कि सचिन तेंदुलकर के अंदर पोटेंशियल है, यानी कि इनके अंदर ये क्वालिटी है, अगर ये साल भर प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। He had made a few changes to the way I batted and the impact was immediate. आचरेकर जी ने जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर बैट करते हैं उसमें कुछ चेंजेस करे थे और जिनकी वजह से इनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। He made a few changes. However, my school did not have cricket facilities, and Sir was keen for me to change schools if I wanted to pursue cricket seriously. अब जिस स्कूल में सचिन तेंदुलकर जी थे उस स्कूल में क्रिकेट के लिए कुछ भी नहीं था, और आचरेकर जी चाहते थे ये एक ऐसे स्कूल में चले जाएं जहाँ पर क्रिकेट फैसिलिटीज़ हो ताकि ये उसको आगे और ज़्यादा टाइम तक खेल सकें। By that time, I had started enjoying my batting and was keen on playing throughout the year. सचिन तेंदुलकर जी को भी मज़े आने लग गए क्रिकेट खेलने में, ये भी चाहते थे कि मैं और ज़्यादा देर क्रिकेट खेलूं। I agreed to the move without any hesitation. तो इसलिए इन्होंने स्कूल चेंज कर लिया था। It was agreed that I should move to Shardashram Vidya Mandir where Achrekar sir was a cricket coach. तो ये उस स्कूल में चले गए जहाँ पर आचरेकर जी क्रिकेट कोच थे। All the cricketers in the school were friends with each other, and even though we were in different divisions and sections, such things hardly mattered. वहाँ पर जितने भी प्लेयर्स थे सभी एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, चाहे अलग डिवीज़न अलग सेक्शन से आए क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती थी। We played together during lunch breaks and discussed cricket all the time, and Achrekar sir would coach us after school. जब भी इनको टाइम मिलता ये क्रिकेट खेला करते थे, लंच ब्रेक में खेलते थे, डिस्कशन किया करते थे, और स्कूल के बाद आचरेकर सर इनको ट्रेनिंग दिया करते थे। Cricket was fast becoming my first love. Everyone at home was very supportive, but my father always said that all he wanted me to do was give it my best effort without worrying about the results. क्रिकेट से धीरे धीरे इनको प्यार होने लग गया था। घर पे इनके सारे बहुत सपोर्टिव थे। इनके फादर इन्हें हमेशा कहते थे कि आपको इस तरीके से खेलना है, बहुत अच्छे से, जितना आप मैक्सिमम अच्छे से कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट की टेंशन कभी भी नहीं करनी है। Joining Shardashram allowed me the opportunity to play competitive matches regularly, and my game rapidly improved as a result. अब स्कूल के अंदर रेगुलर मैचेस होते थे जिनकी वजह से
इनका जो गेम था वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया था. There's nothing like playing matches to get better because only competitive situations force you to outthink the opposition and improvise. Improvise यानी कि जितने आप पहले थे उनसे बेटर होना. तो अगर आप कंपटीशन में आ जाते हो तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो. Net practice can never substitute for match play, and Achrekar sir was an ardent believer in this principle. मैच जो हम नेट में खेलते थे वो कभी भी ऐसे कंपटीशन वाले को तो मैच ही नहीं कर सकता था. और ये तो आचरेकर जी मानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता. I did not excel in my first ever match for my club, which a host of my colony friends came to watch. I was out for a golden duck. Golden duck means when a batsman is declared out for the first ball bowled to them. जैसे ही इनको पहली बॉल बोल की गई थी ये उसी में आउट हो गए थे. I was the star batsman in the colony, and it was natural that my friends would come to see me play. पूरी कॉलोनी के तो ये स्टार बन गए थे तो ये तो श्योर था कि सब आकर इनको देखेंगे. इट वॉज एम्बैरसिंग, लेकिन कितना एम्बैरसमेंट होएगा अगर पहले ही बॉल पे आप आउट हो जाओ तो. इन द सेकेंड मैच आई गॉट आउट फॉर अनदर डक. अब सेकेंड मैच भी हुआ उसमें भी ये फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए थे. And it was only in our third game that I managed to score my first run, having survived 7 deliveries. अब थर्ड मैच के अंदर 7 times इन्होंने बॉल को हिट करा था जिसमें ये 1 रन बना पाए थे. I was seriously relieved to get off the mark. Get off the mark means at least start तो हुआ इनका रन बनाना. I used to keep a diary that contained all the information from these games, but unfortunately I don't have them anymore. उस टाइम पर ये एक डायरी रखा करते थे जिसमें इस टाइप के मैचेस की सारी इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, लेकिन वो डायरी शायद कहीं गुम गई थी, अभी इनके पास नहीं थी. My debut for the school wasn't quite as bad, and I managed to score 24 runs in the match, which we won comfortably. अब इन्होंने जो स्कूल से थर्ड मैच खेला था वो इतना भी बुरा नहीं था और इन्होंने 24 रन्स तो बना ही लिए थे और मैच जीत लिया था. However, I will always remember the game because I learned a very important personal lesson. ये गेम ये कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि इनको एक काफ़ी पर्सनल लेसन मिला है. It taught me to play the sport with honesty and integrity at all times. इस मैच से इन्होंने ये सीखा था कि हमेशा आपको अच्छे से और सच्चाई के साथ ही स्पोर्ट्स को खेलना चाहिए. The incident involved my first appearance in a newspaper, which should have been a happy occurrence. अब इसी के बाद इनका पहली बार पेपर में भी फ़ोटो आया था, नाम आया था. The rule in Mumbai at the time was that a player's name only appeared in print if he had scored 30 runs. अब उस टाइम पर अगर एक प्लेयर ने 30 रन स्कोर करे हैं तो ही उसका नाम पेपर में आता था. I had made 24, but there were many extras in the team's innings, and the scorer decided to credit 6 extras to me. अब इन्होंने बनाए तो 24 रन ही थे, लेकिन काफ़ी एक्स्ट्रा इनिंग्स के मार्क्स थे जहाँ द पीरियड इन अ गेम ऑफ अ क्रिकेट इन विच अ टीम और अ प्लेयर बैट्स. तो उस टाइम पर काफ़ी इनको एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया गया था, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करके दिया गया था, तो इनको 6 एक्स्ट्रा दे दिए थे जिसकी वजह से इनका टोटल 30 हो गया था. His logic was that it didn't matter because the overall score did not change. अब इन चीज़ों से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता क्योंकि ओवरऑल स्कोर में तो कोई चेंज नहीं आया है. The next morning when my name duly appeared in the paper, Achrekar sir was seriously unhappy with what I had done and told me off for consenting to have extra runs added to my tally. अब जब नेक्स्ट डे इनका नाम पेपर में आया तो इनको खुशी नहीं हुई, आचरेकर सर को भी खुशी नहीं हुई क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि वो ऐसे अग्री हो जाएं एक्स्ट्रा रन्स के लिए. वो चाहते थे ये अपनी मेहनत से बनाए रन्स. आई एक्नॉलेज्ड माई मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू अलाउ सच अ थिंग टू हैपन अगेन. उस दिन सचिन तेंदुलकर ने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करा
कि उन्हें ऐसे एक्स्ट्रा रन्स नहीं लेने चाहिए थे, और उस दिन के बाद से ऐसी चीज़ दोबारा से कभी नहीं हुई है। So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you have any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.